حقیقی آزادی ٹائگر نے صوابی میں 9 ماہ سے خان کی رہائی کے لیے دھرنا لگایا، اور یہ حقیقی آزادی ٹائگر وہ ٹیم ہے جو زمان پارک میں بنے گالا میں ہر جگہ خان کے لیے جاتے تھے اور آج بھی کام کر رہے ہیں۔ حقیقی آزادی ٹائگر اگر اسلام آباد ہو، لاہور ہو، پاکستان کے کسی کونے میں ہو، تو حقیقی آزادی ٹائگر وہاں پہ جاتے اور صرف خان کی رہائی کے لیے بات کرتے۔ یہ کسی عہدے سے لالچ نہیں رکھتے کہ میں نے ایم پی اے بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ان کا مقصد صرف ہے خان کی رہائی اور حقیقی آزادی، یہ مقصد ہے۔ جیسا ہم لوگوں نے وہاں پہ دھرنا لگایا، جو ہمارے ورکر شہید ہوئے ان کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ اہتمام کیا ہوا تھا آج سے 7-8 دن پہلا باغ ناران میں، اور آج لیڈرشپ نے یہاں پہ خان صاحب کے کال پہ یہاں پہ آج بھی قرآن خوانی ہوئے، دعا بھی ہو گیا۔ تو ہم لوگوں نے خان کے نظریہ پہ چلنے اور کیسے چلنے اور خان کو کیسے رہا کرنے، اور لیڈرشپ تو کام کر رہے، آئی لیف بھی کام کر رہے، جتنے بھی ہماری پارٹی کے عہدیدار ہیں وہ سارے اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقی آزادی ٹائگر کا ایک کام ہے کہ خان کو رہا کرو، اور جو ورکر غیب ہے ان کو ہمارے سامنے لاؤ کہ شہید ہے کیا ہوا ان کو، اور جو ورکر شہید ہے ان کو انصاف مل جائے، جو ورکر گرفتار ہے ان کو رہا کیا جائے۔ اور ہمارا صرف ایک سوال ہے، گولی کیوں چلائی، کس نے چلائی، کون ہے یہ ہمیں بتائے۔ ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہم پاکستانی نہیں ہے، کہ وہ ہم اس مٹی کے بچے نہیں ہیں کہ ہم آپ لوگ ہم پہ گولی چلائیں گے۔ ہم پرامن لوگ تھے، پرامن گیپ تھے وہاں پہ، لیکن افسوس اس بات کے جو ہمارے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، لیکن میں پاکستانیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم کو خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کیسی ہے۔ اگر ہم لوگ ایم پی اے ان کے پیچھے دیکھیں گے، اگر یہ لوگ نکلیں گے تو ہم بھی نکلیں گے، جب وہ لوگ نہیں نکلیں گے تو ہم بھی نہیں نکلیں گے، تو پھر ہم تو غلام ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو پتہ ہے رحمان بھائی نے اس بات کی ذکر کیا ہے، تقریباً 9 مہینے ہونے والا ہے کہ حقیقی آزادی ٹائگرز نے صوابی میں دھرنا دیا ہے، اور حقیقی آزادی ٹائگرز خان کے اوجا نثار ہیں جو 9 مہینے سے وہ اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے ہیں۔ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہر جگہ پر پہنچتے ہیں، ہر قسم کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور کسی بھی چیز سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا، میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ سب سے پہلے خان صاحب کی حکم تھا کہ آپ لوگوں نے ان افراد کے اوپر ایف آئی آر کروانا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے ایف آئی آر کروانے کی جو ہم نے پہلے سٹیپ اٹھایا تھا، بالکل خان صاحب کی جب بھی حکم پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس پہ جو ہم عمل کرتے ہیں، حقیقی آزادی ٹائگر سب سے پہلے اس چیز پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے یہاں پہ قرآن خوانی کی تھی، اور وہ میسج خان صاحب تک پہنچا ہے، اور خان صاحب نے ان کو ذکر کیا ہے کہ آپ لوگوں نے باغ ناران میں قرآن خوانی ان شہداء کے لیے رکھنا ہے، یا ان کی فاتحہ خوانی رکھنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، پرسوں ہم نے ایف آئی آر وہاں پہ کوشش کی کہ ان کے رپورٹ انہوں نے ہم سے لیے ہیں، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کا رسپانس بھی ہمیں مل جائے گا۔ اگر وہ کچھ کرتے نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے۔ ہم نے کل بنوں میں بھی کوشش کیا ہے۔ ہم اس طرح تقریباً خیبر پختونخوا کے 34 اضلاع ہیں، اس ہر ضلع میں انشاءاللہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے جو حقیقی آزادی ٹائگرز ہے، حقیقی آزادی ٹائگرز ٹیم پوری پاکستان میں کام کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے جتنے بھی لڑکے ہیں انشاءاللہ ہم 34 اضلاع میں یہ ایف آئی آر کرنے جا رہے ہیں، اور اس چیز کی ہم پورے پاکستان کو ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ لوگ خدارہ یہ 10 دن نکالے، اور یہ 10 دن ہمارا ساتھ دے۔ ہم نے 9 مہینے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ لگ گیا ہے کہ ہمیں خان صاحب کو کس طریقے سے رہا کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ 10 دن نکالے، اس جذبے کے ساتھ آئے، اور اس سوچ کے ساتھ آئے کہ یہ ہمارے اچھے مستقبل کے لیے ہوگا، یہ ہمارے خان کی رہائی کے لیے یہ ہم نکل رہے ہیں، تو انشاءاللہ حقیقی آزادی ٹائگرز آپ لوگوں کو دکھائیں گے، آپ لوگوں کو بتائیں گے، آپ لوگوں کو طریقے دکھائیں گے کہ خان صاحب کی رہائی صرف اسلام آباد سے نہیں ہوگا، خان صاحب کی رہائی صرف ڈی چوک جانے سے نہیں ہوگا، خان صاحب کی رہائی کی بہت سارے راستے ہیں۔ لیکن جب تک ہماری لیڈرشپ سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را آپ لوگ ہمیں سیریس لے لیں،
हम हर जगह पे पहुंचे। खान साहब ने जब भी कॉल दिया है तो सबसे पहले हकीकी आज़ादी टाइगर्स ने इस चीज पे लब्बैक किया है। हमने खान साहब के साथ बनीगाला से लेकर जुमान पार्क तक जहां पे भी जब से रजीम चेंज हुआ है हकीकी आज़ादी टाइगर्स ग्राउंड पे निकले। और खान साहब ये जो 9 मई हुआ है 9 मई के फस्तैयत जो जबर जो जुल्म जो एक खामोशी चाहिए थी उस टाइम हकीकी आज़ादी टाइगर्स रिकॉर्ड पर है कि दिन रात एक करके उन्होंने खान साहब की रिहाई के लिए तब भी आवाज उठाया था और आज तक वो आवाज उठा। जी, पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि सियासी क़यादत पीछे रह चुकी है और कारकुनान आगे जा चुके हैं। जी हाँ, कि कारकुनान ने अपनी मदद के आप तहत छोटा लाहौर में, सवाबी में FIR दर्ज करवाने की कोशिश की है, एप्लीकेशन दे दी है। इनका कहना यह है कि FIR दर्ज होगी तो ठीक है, वरना अदालत की तरफ रुख करेंगे। ये ख्याल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को आना चाहिए था, जिनके पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं, मगर ये कारकुनान कर रहे हैं। आसिफ, क्या कहना चाहेंगे आज के शोहदा के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मकसद यही है कि हम जो हमारे शहदा है उनको हम हमेशा याद रखें, और हम बार बार कहना चाहते हैं कि जो हमारे बेगुनाह वर्कर को शहीद किया रियासत की तरफ से डी चौक में, ये तारीख में हम कभी ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। अगर रियासत इस गुमान में है कि हम ये चीज़ भूलेंगे और हम इनसे डर जाएंगे, खुदा की कसम हमारे पास एक ही जान है, 9 माह से हम घरों से निकले, ये एक ही जान है, ये भी खान पे और इस मुल्क पे कुर्बान है। ना हम आप लोगों की हथकंडों से डर रहे हैं, ना आपकी बंदूकों से हम डर रहे हैं। हम दोबारा आएंगे, हम दोबारा लड़ेंगे, लेकिन असल मकसद जो है इस दोबारा तैयार हैं आप फिर डी चौक की तरफ जाने को? मुर्शिद ने जब इशारा दिया तो सबसे पहले मैं हूँगा, और जहाँ खान बुलाएगा वहाँ पहुंचूंगा सबसे पहले। अगर वो आपकी लीडरशिप ना उस तरफ जा सकी तो आप कैसे जाएंगे? अकेले जाऊंगा, क्योंकि हम मुर्शिद के साथ खड़े, हमारे लिए डायरेक्ट इमरान खान का हुक्म है, और जब वो हुक्म देता है तो हम हर रास्ता उबूर करके पहुंचेंगे। या हमारा असल मकसद ये है कि जब डी चौक में सानिया हुआ सारे लोग घरों को चले गए, सारे खामोश बैठ गए। हमने 9 माह से धरना दिया सिर्फ इस गरज से कि खान साहब की रिहाई के लिए हमने कुछ करना है, घरों को नहीं जाना। बड़ी बात की है, मुझे याद दिला दिया कि पिछले 8 माह से तो धरना दिए ही बैठे हैं। डी चौक के वकूए के बाद, सानिया के बाद लोग अपने घरों को जा चुके थे और जा चुके हैं, मगर ये पलट कर झपटना, झपट कर फिर पलटना, पलट कर फिर झपटना, ये आगे फिर वही सवाबी धरने में बैठ गए हैं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आज के शोहदा के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शोहदा एक तारीख बना हुआ है, वो अभी कभी मैं नहीं भूलेगा। और हम लोगों ने 8 महीने से धरना दिया था ना, अभी हम पाकिस्तान आवाम को पहला अपील करेगा तो सब निकलो स्वाबी के धरने में 10 दिन हिस्सा ले। हो बहुत रास्ते हैं खान साहब रिहाई के लिए, तो बहुत रास्ते हैं रिहाई के लिए। हाँ, इतना रास्ते है ना, हम 10 दिन में गारंटी से दिखाएगा वो निकलेगा। और तो आम कैसे बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं। ये लोग आम के साथ देगा ना पूरा पाकिस्तानी को, तो पूरा पाकिस्तानी नहीं है तो सिर्फ पिटाई का वर्कर देगा ना, फिर भी हम करके दिखाएगा खान निकलेगा का नहीं निकलेगा। अगर ये लोग जितना बुरबरत है और जुल्म करता है ना, ऐसे फलस्तीन में भी नहीं हुआ। क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है। और तीसरी बात, वो तो कहते नहीं है। अभी ये लोग बोलते हैं गोली क्यों चला है, ये पैर क्यों कट नहीं हुआ। हम हकीकी आज़ादी टाइगर ने अल्हम्दुलिल्लाह छोटा लाहौर में किया था, अभी हम इंशाल्लाह जंडोला में भी करवाएगा, टांग में भी करवाएगा, वजीरिस्तान में भी करवाएगा और डेरा इस्माइल खान में भी करवाएगा इंशाल्लाह। वाह जी, क्लैपिंग इनके लिए कर दे एक दफा। सबसे पहले हम लोग शानिया डी चौक 26 नवंबर के शोधा को खराज अकीदत पेश करते हैं, और उनकी जो कुर्बानी है उनको ताहयात याद रखेंगे, और उनकी कुर्बानी को पाकिस्तान की तारीख में अजीम कुर्बानियों के तौर पे याद रखा जाएगा। ये हमारा उन शोधा के ख़ानदानों से वादा है। जितने भी लोग हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, जब से वो शहीद हुए वो हमारे घर के फ़र्द बन चुके हैं। जैसे हम अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व अक़ारब के लिए फातिहा ख्वानी करते हैं, उनके लिए भी फातिहा ख्वानी करेंगे। दूसरी बात यह है कि उन शोहदा के साथ साथ हमारे जो मिसिंग पर्सन है, जो सबसे बड़ा मामला इस वक्त का, मिसिंग पर्सन 4000 के करीब मिसिंग पर्सन है, जो कि अभी तक मंजर आम पे फिगर नहीं लेके आया जा रहा। 4000 से ज्यादा लोग हैं जिनका पता नहीं है, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया है, उनका कोई डाटा अभी तक नहीं है। अभी तक केपी हुकूमत 180 के करीब लोगों का डाटा इकट्ठा कर चुकी है, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आए थे, असद कैसर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 26 के बाद, उसने कहा था कि तकरीबन 4000 के करीब जो मिसिंग में, और 2000 के करीब जो शहादत जामे शहादत नोश कर गए, उन लोगों की खबरें आ रही हैं।
26 नवंबर तक जो लोग जिनके जिस्म खाकी हमें, जिन शोहदा के जिस्म खाकी हमें मिल गए, जो KPK पहुंच गए, वो 12 से 16 लोग थे जो कंफर्म हुए हैं। उसके बाद एजेंसीज ने तमाम का तमाम रिकॉर्ड हॉस्पिटल से चुराया। हर हॉस्पिटल में इस्लामाबाद के इमरजेंसी लगी, एजेंसीज पहुंची, उन्होंने पहुंच के वहां से मतियुल्लाह जान, शाकिर अवान, ये तो बड़े खुले खुले वाकयात है ना, इन लोगों को उठाया। इनको उठाने के बाद वहां से एक भी जख्मी, जबकि मशीन गन तो चली है 26 को 8 बजे के बाद रात को, ठीक है। ये चीजें, उन शोहदा का रिकॉर्ड आज तक क्यों छुपाया जा रहा है, ये सबसे मेन सवाल है। दूसरी बात ये कि खान साहब ने जब हुक्म दे दिया कि इन शोहदा के खून को रायगा नहीं जाने देना, तो इनके खिलाफ आप लोग FIR काटो, इन शोहदा की कुर्बानी को उजागर करो, इनके लिए दुआ की तकरीब हर जगह पे करो। तो हकीकी आज़ादी टाइगर्स टीम ने शवाबी में एक इन शोहदा के नाम का स्पेशल कैंप लगाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। शवाबी धरने में जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 24 आवर इन शोहदा के लिए जो भी बंदा है, उनकी तस्वीरें, गुलाब के फूल और सुपारे कुरान मजीद पड़ा हुआ है, जो भी लोग आए वो दुआ खानी कर सकते हैं। दूसरा जो खान साहब का हुक्म था इंग्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आप इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज करें, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कल शवाबी धरने में या पेशावर प्रेस क्लब में इंग्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल मीडिया के सामने हकीकी आज़ादी टाइगर्स की हमारी टीम उसका भी जरूर एहतमाम करेगी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हकायक पर मुबनी होगी और पूरे सबूत के साथ हम लोग करेंगे। उसके बाद खान साहब ने बोला था कि FIR जो सानिया डी चौक, इतना बड़ा जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी सानिया है, ब्लैक डे है, जो सबसे बड़ा सियासी सानिया है, उस पे हमने FIR दर्ज करवाने का एक सिलसिला शुरू किया है। और 34 जैसे अमीन वजीर ने बताया, रहमान भाई ने बताया, चाचा ने बताया कि KPK के हर डिस्ट्रिक्ट में, और मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मेरा पंजाब से ताल्लुक है, तो मैं पंजाब के 5 से 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए कोशिश करूंगा कि हम वहां पे पहुंचे। जितना भी जुल्म है, जितनी भी बर्बरियत है, लेकिन शहीद के लिए इंसाफ हम जरूर मांगेंगे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में। शहीद के लिए इंसाफ जरूर मांगेंगे। नाज़रीन ग्राम, बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यही फरमाते हैं कि गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई। मैं फिर वही पुराने अल्फाज रिपीट करने वाला हूँ कि गोली क्यों चलाई। मुझे नहीं पता किसने चलाई, कैसे चलाई, क्यों चलाई, किस वक्त चलाई, वक्त भी याद है, सब कुछ पता है, वहीं पे ही था, मगर फिर भी कहता हूँ कोई पता नहीं है किसने चलाई, क्यों चलाई, किस लिए चलाई। फिर वही दलील दे रहा हूं कि सांप के हलक में जहर उतर आए, तो आप सांप को कहें कि सांप डसे ना, ऐसा हो नहीं सकता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह हाफिज।